Let us have understanding of the next question. I request all of you to just let me explain you. You do not write anything unless I tell you to write. Electra Space is a consumer electronic wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. In 6 months of the year, firm has huge cash deposit. बहुत सारा पैसा आता है. And especially near Christmas time and other 6 months, firm cash crunch. तो 6 महीने में बहुत सारा पैसा आता है और 6 महीने कैश का क्राइसिस रहता है. लीडिंग टू हाईलाइट द पोर्शन बोरोइंग ऑफ द मनी. तो यहां पे हमको फंड्स क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, ऑफ कोर्स जब कैश का क्राइसिस है, टू कवर अप द एक्सपोजर्स फॉर रनिंग द बिजनेस. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शैल बोरो a sum of euro 50 million for the entire period of the slack season in about 3 months. तो 3 महीने के बाद जो स्लैक सीजन आने वाला है उसमें हम लोग 50 मिलियन यूरो को बोरो करेंगे, ऐसा दे रखा है हमको. A bank has given the following quotations. स्पॉट यानी अगर आज आपको बोरो करना है, आज आपको लेंड करना है, 3 into 6 FRA यानी 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए अगर आप बोरो करना चाहते हो, 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए अगर आप बोरो करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए, ठीक है ना. 9 minus 3, that is the way we have to consider 6 over here. 6 minus 3, that is the way you have to understand 3 over here for borrowing and for investment. तो बैंक ने ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के कोटेशन दिए, FRA. द 3 months euro 50,000 futures contract maturing in a period of 3 months is quoted at 94.15, 5.85% and you are required to determine. ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है. दैट इज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंटरेस्ट. सो दिस इज एब्सोल्युटली न्यू. A part of the question, how a forward rate agreement shall be useful if actual interest rate after 6 months turns out to be 4.5% and 6.5%. और फिर हमको B part of the question दे रखा है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. I request all of you to go through the question please. I want you to write in the chat box कि ये जो सारे हमको कोटेशंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा कोटेशन हमारे लिए रेलेवेंट है. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग. फ्रेंड्स, ओवर हियर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, दैट से वी आर हैविंग से द कैश क्राइसिस फॉर 6 months and language of the question says very clearly it is expected that firm shall borrow a sum of 50 million for the entire period of the slack season, that is 6 months, in about 3 months. तो 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए बोरो करना है. So this is irrelevant, this is irrelevant, this is relevant, और उसमें भी हमको बोरो करना है, इसलिए 5.94% is relevant. So the answer is very simple. We understand that say we will enter into the forward rate agreement 3 into 9 to borrow an amount of 50 million euro at the rate of 5.94%. This is what we understand. Now actual rate of interest kuch bhi ho, we are not bothered about it. Why? Because we understand that say actual rate of interest kuch bhi ho, so we will be having say ultimately the payment of interest at 5.94%. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन हाउ अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शेल बी यूजफुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 months turns out to be 4.5% and if it turns out to be 6.5%, that is a question. So let me explain to you, you do not have to write anything. This is day 0, this is after 3 months and this is like after 9 months.
and basically we are going to have the borrowing of the funds say for this 6 months time period. Okay, कितना अमाउंट हमको borrow करना है? We have to borrow an amount of 50 million. So 1 million is equal to 10 lakhs into 50 million. So basically at this point of time we are going to borrow an amount of 500 lakhs. Listen me carefully. We understand that say जो rate of interest decide हुआ था वो था 5.94 और actual rate of interest है 4.5%. So it is 5.94 minus 4.5. So difference of both of them is 1.44%. And the time period is 6 months. So the amount of interest is 500 lakhs into 1.44% into 6 divided by 12. So this is the differential interest. We understand that say we were supposed to borrow at 5.94 but rate of interest कम हो गया. So in that case, so the company is supposed to pay to bank. But this 3,60,000 is of this date. इसलिए क्या किया जाएगा? उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा. वी अंडरस्टैंड एट से अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%. सो दिस 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हुआ? 2.25 डिवाइडेड बाय 1.0225. तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 3,52,078. This is what we understand. So the company is required to pay to the bank. Now let us assume that say the company is borrowing this amount also for the purpose of making payment say to the bank. So what will happen? We understand that say 3,52,078 is borrowed along with the 50 lakhs and say we make the payment to the bank. तो ये अमाउंट का रीपेमेंट ऑफ द लोन क्या होगा? 4.5% क्योंकि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू 6/12. सो इंटू 4.5% इंटू 6/12. So the amount of the interest is 7,922. So 352,078 plus 7,922, that comes to 3,60,000 once again. यानी इन शॉर्ट क्या हुआ? हमको 3,60,000 का जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो तो लगेगा ही. इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म इट इज दिस मच और 6 महीने के बाद दिस मच. So over here the institute has presented the suggested answer in this way. Let me explain you. Interest payment to bank. आपको लिखना नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से लिखवाता हूँ. It is an amount of 500 lakhs into 4.5% into 6 divided by 12. That comes to 11,25,000. जो हमको बिजनेस के लिए पैसे का जरूरत था. एंड सेटलमेंट ऑफ FRA, in that case it is 500 lakhs into, listen me carefully, 5.94 minus 4.5 into 6 divided by 12. 5.94 minus 4.5 यानी 1.44. So 500 lakhs into 1.44% into 6 divided by 12, that comes to 3,60,000. यानी इलेक्ट्रा स्पेस नाम का जो कंपनी है उसका टोटल खर्चा क्या हो गया? 11,25,000 प्लस 3,60,000.
ये जो है 360, दैट कम्स टू 14,85,000 इन द फर्स्ट केस. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड लाइक दिस. ये हमारा टोटल खर्चा हो गया से फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग ऑफ द फंड्स. तो इफेक्टिव खर्चा क्या हुआ? वी अंडरस्टैंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 14,85,000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500 lakhs इंटू R अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड कितना है? 6 divided by 12. So our rate of interest will be found as balancing figure 14,85,000 upon 500 lakhs into 100 into 12 divided by 6. ऐसा करके हमको आंसर फाइंड करना है. 14,85,000 into 100 into 12 divided by 500 lakhs divided by 6, and that comes to exactly 5.94%. तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर रिक्वायर्ड टू शो दिस वर्किंग एंड वी आर रिक्वायर्ड टू शो दिस वर्किंग कि देखो आपका इफेक्टिव कॉस्ट 5.94% ही हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही 4.5% हो जाए और वैसा का वैसा हम लोग दूसरा वर्किंग बताएंगे. सी लॉजिकली व्हाट हैपेंस एट से, लॉजिकली कुछ ऐसा होता है कि इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. उसके बाद से ये जो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में हमने कन्वर्ट किया है से उसका हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो भी पैसा उनको देना है किसको, टू द पर्सन हु हैज एंटर्ड विथ अस से फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, दैट इज बैंक इन दिस एग्जाम्पल. अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन, वो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं होता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसकी वजह से दिस इज फॉर से वी आर रिक्वायर्ड टू पे एक्स्ट्रा एंड फॉर दैट से वी आर बोरोइंग, और उसका इफेक्टिव कॉस्ट ये 3,60,000 रुपये ही हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% हो गया. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स. इट इज 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. So 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. That comes to 16,25,000. So this is the interest payment to the bank. और सेटलमेंट, इस पर क्या होगा फ्रेंड्स? सेटलमेंट में हमको पैसा मिलेगा, दैट इज 500 lakhs into 6.5 minus 5.94 into 6 divided by 12. 6.5 minus 5.94 यानी क्या हुआ? 0.56. 500 lakhs into 0.56% into 6 divided by 12. That comes to 1,40,000 हमको मिलेगा. सो उतना हमारा खर्चा कम हो गया. That is deducted from 16,25,000. तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंस क्या हो गया? वापस 14,85,000 हो गया. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. चलो राइट ऑन हेडिंग फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. FRA. So in that write down first point, as per the given information, comma, the company is in need of
euro 500 lakhs for 6 months after 3 months. Second point, entering into forward rate agreement, comma, will have rate of interest %5.94, ब्रैकेट में लिखो 3 into 9 FRA for borrowing. With paragraph read down, irrespective of rate of interest after 3 months, comma, cost of borrowing will be 5.94%. now हमको दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 4.5% और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 6.5%. उस पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक 500 lakhs into 4.5% into 6 divided by 12. 500 lakhs into 4.5% into 6 divided by 12. यानी इंटरेस्ट पेमेंट बैंक को कितना है 11,25,000. उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ FRA. सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हमको ऊपर का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा. सो 500 lakhs into 5.94 minus 4.5% into 6 divided by 12. 5.94 minus 4.5, that comes to 1.44. So 500 lakhs into 1.44% into 6 divided by 12. That comes to 3,60,000. उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट. That is 11,25,000 plus 360, so 14,85,000. ऐसा करके हम लोग 4.5% के कॉलम में आंसर लिखेंगे. 6.5% में ऐसा ही होगा. 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. This is the way we will have the payment of interest to bank. So 500 into 6.5% into 6 divided by 12. That comes to 16,25,000. ये आपने पे किया और वहाँ पे क्या होगा, सेटलमेंट में आपको रिसीव होगा. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. So over there you will receive. That is what we understand.
सो सेटलमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट लाइक दिस 500 lakhs into 6.5 minus 5.94 into 6 divided by 12. So 6.5 minus 5.94, 0.56. 500 into 0.56 percentage into 6 divided by 12. That comes to 1,40,000 का रिसीप्ट होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होगा, सॉरी कम हो जाएगा. एंड इट विल बी अगेन 14,65,000. तो दोनों सिचुएशन में हमारा ओवरऑल खर्चा कितना हो गया, दोनों सिचुएशन में हमारा ओवरऑल खर्चा हो गया 14,65,000, सॉरी 14,85,000. ऐसा हम लोग समझते हैं. So now final answer about the rate of interest. Write down calculation of rate of interest. In that simple formula, interest is equal to PRN upon 100. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इट इज 14,85,000. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500 lakhs. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो हमको फाइंड करना है. टाइम पीरियड कितना है, 6 महीना. This is the way we are required to find the rate of interest. So R is equal to 14,85,000 divided by 500 lakhs into 12 divided by 6 into 100. ऐसा करके हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. $14,85,000 into 12 into 100 divided by 500 lakhs divided by 6. It comes to exactly 5.94%. Now, first of all, I am giving explanation to you, say about the information which they have provided over here to us. Question में ऐसे दे रखा है 3 months euro 50,000 futures contract maturing in a period of the 3 months is quoted at 94.15. Any rate of interest say 5.85% and so on. The question is there. फ्रेंड्स, इसका मतलब ऐसा होता है कि आज से 3 महीने के बाद और 3 महीने के लिए ऐसा दे रखा है. तीन महीने के बाद 3 महीने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल. in which the rate of interest is 5.85% and treasury bill price is 94.15. और ऊपर से इंफॉर्मेशन हमको ऐसा दे रखा है, द लॉट साइज is euro 50,000. Futures is still definitely we will be having say the concept of the lot size. यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जिसमें हमको ट्रेजरी बिल का प्राइस दे रखा है, what you have to do, you are required to enter into the futures contract for purchasing or selling of the security. We understand logically like this, that says a company, I am considering this method of the hedging, may it be the forward rate agreement, may it be the interest rate cap option, may it be the interest rate futures जो भी हम लोग समझ रहे हैं. Why? Because we are expecting that the rate of interest will go up
तो यहाँ पे से आप 5.85% पे बोरो करेंगे, ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन डू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रेजरी बिल। आप क्या कर सकते हो कि ट्रेजरी बिल जो है से उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो ट्रेजरी बिल सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू कैन एंटर अपॉन। ट्रेजरी बिल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ट्रेजरी बिल का प्राइस लॉजिकली वी अंडरस्टैंड एट से 100 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ट्रेजरी बिल का प्राइस हो गया 100 माइनस 5.85। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू गो अप, इसलिए क्या होगा, द ट्रेजरी बिल प्राइस इज गोइंग टू फॉल डाउन। मुझे क्या लग रहा है कि 3 महीने के बाद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर इन द मार्केट, इसलिए जब मैं स्पॉट से बोरो करूंगा तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई वांट टू डू हेजिंग। तो यहां पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, से यू कैन नॉट डू द ट्रांजैक्शन फॉर द इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू डू द ट्रांजैक्शन फॉर द ट्रेजरी बिल सेल और परचेज। तो ट्रेजरी बिल का जो प्राइस है ना वो कैसे कैलकुलेट होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसका प्राइस कैलकुलेट होता है 100 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, that is calculated as 94.15। now listen me carefully, ये 94.15 का जो प्राइस है वो प्राइस क्या होगा आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, और वी कैन से इफ एट ऑल इट इज फॉलिंग डाउन देन इन दैट केस से इट इज अनफेवरेबल टू यू, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ट्रेजरी बिल का प्राइस नीचे जाएगा। सो व्हाट यू विल डू टुडे आज का जो भी डेट है, टुडे you will enter into the transaction for sell treasury bill in futures for the purpose of hedging। treasury bill सेल करने का आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे at which rate, at the rate of 94.15। this is what we understand। कितना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट में, बट बिफोर दैट से यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस उन्होंने क्या दे रखा है, ऊपर वाला ही है। यानी सपोज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5। अंडरस्टैंड केयरफुली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 एंड 6.5। उसमें आपको सबसे पहले ट्रेजरी बिल का प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल का प्राइस क्या होगा, फर्स्ट सिचुएशन में उसका प्राइस हो जाएगा 94.5 और सेकेंड सिचुएशन में उसका प्राइस हो जाएगा 93.5। What is the price at which you have entered into the transaction for sale? 94.15। तो क्या होगा प्रॉफिट या लॉस, 94.15 माइनस 95.5, ये आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, दैट इज 1.35 का। और यहां पे क्या होगा 94.15 माइनस 93.5, यहाँ पे क्या होगा 0.65 आपको फायदा होगा। इन सबको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो ट्रांजैक्शन है ना वो ट्रांजैक्शन टी बिल में करेंगे, और टी बिल के हम लोग क्या करेंगे, टी बिल हमको सेल करना है। क्यों सेल करना है, बिकॉज इफ एट ऑल द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो अप देन इट इज अनफेवरेबल टू यू, और उस केस में ट्रेजरी बिल नीचे जाएगा, इसलिए आज से ही हम लोग ट्रेजरी बिल बेच देंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी व्हाट हैपेंस एट से हमको जो अमाउंट बोरो करना है दैट इज एन अमाउंट ऑफ 500 lakhs। लॉट साइज है हमारा कितना 50,000। सो वी अंडरस्टैंड एट इट इज 500 lakhs divided by 50,000। So apparently we understand, so we should enter into 1,000 contracts. However, there is an important point once again over here. Important point क्या है friends? We know that say we want to borrow for the entire slack period that is 6 months. हमको 6 महीने के लिए फंड्स बोरो करना है, और ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सिर्फ 3 महीने का ही होता है। सो व्हाट विल हैपन, वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग ये सिचुएशन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा।
See what happens at say if at all the rate of interest is going up, then in that case से आपको जो funds borrow करना है उसमें तो ज़्यादा interest पे करना पड़ेगा. कितना पे करना पड़ेगा? 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. This is what you have to pay. 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. यानी आपको 16,25,000 पे करना पड़ेगा. Why? Because the rate of interest has gone up. उससे ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी बैठेगा. आपने जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट किया उसमें आपको गेन हुआ कितने का? 0.65% का. यहाँ पे एग्जैक्टली इंटीजर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि 500 lakhs उसके ऊपर हमको 0.65% का फायदा हुआ. एंड इंपॉर्टेंटली वी अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सिर्फ 3 महीने का. सो इंटू 3 डिवाइड बाय 12. 500 lakhs इंटू 0.65% इंटू 3 डिवाइड बाय 12. यानी हमको फायदा कितना हुआ? 81,250 का माइनस 16,25,000. यानी आपको एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट कितना हुआ? 15,43,750. ये आपको इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. ऐसा हम लोग समझते हैं. तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 15,43,750. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500 lakhs. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कि क्या होना चाहिए था? 5.85, पर एक्चुअली यहाँ पे 5.85 आंसर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमको 6 महीने का हेजिंग चाहिए था और मिला सिर्फ 3 महीने का. इसका सॉल्यूशन क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले वी अंडरस्टैंड एट से व्हाई दिस इज नॉट सफिशिएंट. बिकॉज वी अंडरस्टैंड एट से जो हेजिंग का हमको फायदा मिला ना, वो फायदा हमको कम टाइम पीरियड का मिला. So 15,43,750 into 12 into 100 divided by 500 lakhs divided by 6. That comes to 6.175. So we understand that से basically क्या हो गया? से ये आंसर हमारा गलत हो गया. अच्छा, तो करने का क्या? अभी मैं आपको वो समझा रहा हूं. So basically we understand that say over here the futures contract is available only for 3 months and we want to do hedging for 6 months. So what you have to do friends, it's very simple. We understand that say it is 6 divided by 3. You have to do contract for, you have to do more number of contracts. यानी क्या करो आप 500 lakhs की जगह so you do the transaction for 1,000 lakhs of rupees. So it is 500 into 6 divided by 3 divided by 50,000 into 1 lakh. That comes to 2,000 contracts. हम लोग क्या करेंगे? 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे. यानी 500 लाख की जगह हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग 1,000 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे. सो दिस विल बी 1,000 lakhs. सो व्हाट विल हैपन? इट इज 1,000 lakhs into 0.65% into 3 divided by 12, क्योंकि टाइम पीरियड तो 3 महीना ही है. सो यू विल बी एबल टू रिसीव ओवर हियर 1,62,500. 162,500. तो 16,25,000 is the payment, 162,500 is the receipt. तो आपका नेट एक्सपेंस क्या हुआ इंटरेस्ट का? नेट एक्सपेंसेस 14,62,500. ये आपका नेट खर्चा हुआ. नाउ गोइंग विद द सेम प्रोसीजर, तो यहां पे मैं क्या लूंगा? 14,62,500. 14,62,500. So use your calculator. 14,62,500 into 12 into 100 divided by 500 lakhs divided by 6.
that comes to exactly 5.85%. तो आपको हेजिंग करके वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो आपका होना चाहिए था. This is what we understand. So friends, we understand over here that say कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर करेंगे. फॉर दैट से वी कैन से दैट से अमाउंट टू बी बोरोड that is an amount of like 500 lakhs divided by the lot size into time period of borrowing, that is 6 months, divided by the contract period. That is 6 months. This is the way we are required to make the calculation of the number of contracts to be entered upon. And friends, of course, ये जो आंसर है, if at all it comes in integer, decimal में आता है, then in that case we cannot enter into the decimal number of contracts, तो उसको full value करना ही पड़ेगा. For example, just मैं आपको बता रहा हूँ, let us say that say this is 500 lakhs, the lot size is 50,000, into time period of borrowing is let us say 5 months, and the contract period is 3 months. तो कैसे होगा 500 lakhs into 5 divided by 50,000 divided by 3, that comes to 1666.67. तो ऐसा नहीं हो पाएगा. You have to do 1667 contracts and accordingly आपको इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और अमाउंट टू बी पेड. ये 1000 lakhs नहीं होगा, देन इन दैट केस इट इज 1667 into 50,000. That will be 833.5 lakhs. उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So just a small adjustment that you have to make. चलो, write down heading interest rate futures. In that, write down first point. Over here, this transaction is entered upon through stock exchange. Second point, over here transaction is entered upon for treasury bill, comma, not for rate of interest. Price of treasury bill depends upon rate of interest. It is 100 minus rate of interest. Third,
Third, importantly, as the company is required to borrow, comma, so the company is worried about rate of interest going up, full stop. So the company should enter into a transaction in such a way so that if rate of interest goes up, comma, company can make profit in interest rate futures, full stop. With paragraph write down, if rate of interest goes up, comma, treasury bill price will fall down. Hence, enter in futures contract to सेल ट्रेजरी बिल। तो हम लोग क्या करेंगे, आज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे जिसमें ट्रेजरी बिल बेचेंगे। फोर्थ, टाइम पीरियड ऑफ बोरोइंग एंड time period of futures contract may not be same. Full stop. So, futures contract will be entered upon considering this time difference. उसी में लिखो number of futures contracts to be entered upon. उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बोरोइंग डिवाइडेड बाय लॉट साइज into time period of borrowing divided by
time period of futures contract. This is the way the number of contracts to be entered upon will be found. Logic I hope is clear to all of you. ये 500 लाख से ये डिवाइड बाय 50,000 है और ये टाइम पीरियड ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है इस वजह से. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द आंसर. इन दैट राइट डाउन number of contracts to be sold. सोल्ड क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है दैट इज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा देन इन दैट केस हमको नुकसान होने वाला है. दैट इज द रीजन से वी आर एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर सेल. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट हमको पे करना है दैट वी विल बी एबल टू रिकूप फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स गेन. Amount of borrowing divided by lot size into time period of borrowing divided by time period of futures contract. ऐसा हम लोग समझते हैं. अमाउंट ऑफ बोरोइंग कितना है? 500 लाख से. लॉट साइज कितना है? 50,000 रुपये है. टाइम पीरियड ऑफ बोरोइंग 6 महीना है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है 3 महीना. सो द फाइनल आंसर विल बी 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. उसके बाद फ्रेंड्स मेक दिस एज वर्किंग नोट नंबर 1. Working note number 2, calculation of the profit or loss in index futures. हमको 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 4.5% और 6.5%. हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू कितना है? इट इज 94.15. दैट इज दिस वन, 94.15. फिर उसके सामने क्या लिखेंगे? बाय वैल्यू. बाय वैल्यू फर्स्ट में क्या होगा? 100 माइनस 4.5. क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है तो ट्रेजरी बिल का प्राइस होगा 95.5 और सेकेंड में क्या होगा? 100 माइनस 6.5 दैट इज 93.5. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस. 94.15 माइनस 95.5 दैट कम्स टू 1.35 नेगेटिव. और दूसरे में क्या होगा? 94.15 माइनस 93.5 दैट कम्स टू 0.65. दैट इज द गेन दैट वी हैव. ओके, सो वी अंडरस्टैंड दैट से द total profit or loss.
उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? लिसन मी केयरफुली. वी अंडरस्टैंड दैट से वी हैव एंटर्ड इनटू 2000 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो इट इज 2000 इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू 50,000 का लॉट साइज इंटू क्या हुआ, फर्स्ट सिचुएशन में हमको लॉस हुआ 1.35% का, और टाइम पीरियड कितना है 3 डिवाइड बाय 12. That is the way we will find the profit or loss. So 2000 into 50,000 into 1.35% into 3 divided by 12. That comes to 3,37,500. उतना हमको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट में हमको गेन होगा. गेन कितने का होगा? इट इज अगेन 2000 इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 50,000 का लॉट साइज है, 0.65% का गेन हुआ, और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो इंपॉर्टेंटली 3 महीने का है. सो इंटू 3 डिवाइड बाय 12. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 2000 इंटू 50,000 इंटू 0.65% इंटू 3 डिवाइड बाय 12. दैट कम्स टू 1,62,500. Okay, this is the way the profit or loss is calculated in both the situations. Now next, in that write down calculation of overall cost and the rate of interest. दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज 4.5 और दूसरे में 6.5. उसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक. तो हमको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 500 लाख इंटू 4.5% into 6 divided by 12. 500 lakhs into 4.5% into 6 divided by 12. That comes to 11,25,000. Next में क्या होगा? 500 lakhs into 6.5% into 6 by 12. इतना इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा बैंक को. 500 lakhs into 6.5% into 6 divided by 12. That comes to 16,25,000. Okay. उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रॉफिट और लॉस इन इंडेक्स. अच्छा देखो, फर्स्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट में हो रहा है लॉस कितने का? 337,500. तो हमारा वो कॉस्ट बढ़ाएगा. सेकेंड में क्या हो रहा है? सेकेंड में गेन हो रहा है कितने का? 160,500 का. तो वो हमारा कॉस्ट कम करेगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट से 11,25,000 प्लस 337,500, दैट कम्स टू 14,62,500. सेकेंड में देखो 16,25,000 माइनस 162,500, वापस क्या है? सेम 14,62,500. उसके बेसिस से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 14,62,500. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है. टाइम पीरियड कितना है? 6 divided by 12. Now R will be found as balancing figure. R will be 14,62,500 divided by 500 lakhs into 12 divided by 6 into 100. ऐसा करके हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. 14,62,500 into 12 into 100 divided by 500 lakhs divided by 6, it comes to 5.85%. तो बेसिकली जो रेट पे आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का ट्रांजैक्शन किया था
वही का वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दोनों सिचुएशन में आ जाएगा, whether the rate of interest is going down or it is going up. See, language of the question is how 3 months futures contract, तो 3 months का futures contract shall be useful to the company if the interest rate turns out to be as mentioned in part A above. So this is the way we are required to give answer of the question. So finally the entire summary of the question. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, एक कंपनी को 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स। तो आज का डेट है 1 जनवरी, तो 1 अप्रैल को 1 सितंबर तक का पैसा चाहिए। दो उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और दूसरा है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वही है जो हमने समझा हुआ है, द ओनली थिंग इज दैट से यहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज है। वाई? बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लाइक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया एट 5.94, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 हो जाता है, देन इन दैट केस से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में 3,52,078 का पेमेंट करना है। लेट अस अज्यूम कि हमने वो बोरो करके पे किया है, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? 3,60,000 ही हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4.5% हो गया तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? दो चीज़, एक हमको बैंक को पे करना पड़ेगा 11,25,000 और दूसरा हमको सेटलमेंट ऑफ द FRA में पे करना पड़ेगा 3,60,000। सो कुल मिला के हमारा खर्चा हो जाएगा 14,85,000। दैट इज इन द फर्स्ट केस। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो जाता है 6.5%, देन इन दैट केस सेम थिंग, वी हैव टू पे टू द बैंक 16,25,000, पर उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इसलिए हमको कंपनसेशन मिलेगा और उसकी वजह से हमारा खर्चा कम हो जाएगा। यानी इफेक्टिव रेट दोनों सिचुएशन में 5.94 ही बैठेगा। तो उसका मैंने आपको पूरा आंसर सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखवाया और उसको हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ट्रेजरी बिल का जो स्टोरी है वो पूरा अलग स्टोरी है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो अंडरलाइंग नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट्स द अंडरलाइंग इज द ट्रेजरी बिल, पर ट्रेजरी बिल का जो प्राइस है ना दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। तो हमको क्या करना है? हमको ट्रेजरी बिल के ऊपर डील करना है। हम लोग ट्रेजरी बिल सेल कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सोचने का कि मुझे किस चीज़ का डर है? मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का डर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, देन इन दैट केस मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसको मैं कवर अप कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं ट्रेजरी बिल में कुछ डीलिंग करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ऊपर जाएगा तभी ट्रेजरी बिल का प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? 100 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ट्रेजरी बिल को बेच देंगे। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, ट्रेजरी बिल का प्राइस नीचे जाएगा, तो हमको उसका डिफरेंस का फायदा मिलेगा। दिस इज फॉर द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे हमको दे रखा है दैट से हमको 6 महीने का हेजिंग करना है और 3 महीने का ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ऐसा हमको दे रखा है। इसलिए क्या किया जाएगा? 6/3, दैट इज द वे द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग एंटर होंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन किया, दैट कम्स टू लाइक 2000 इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिर प्रॉफिट और लॉस इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया। ओवरऑल कॉस्ट दोनों सिचुएशन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सेम आएगा। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द आंसर।